شبی علم اور شبی ذوالجناح برآمد ہوں گے۔ علاقہ بھر کی ماتمی سنگتیں تشریف لائیں گی۔ جملہ مومنین سے اور خصوصاً ماتمی حضرات سے جوق در جوق شرکت کی استدعا ہے۔ 13 جون بامقام ٹٹھی سیداں تحصیل کہوٹہ میں سالانہ مجلس عظام منعقد ہوگی، جس سے پاکستان بھر کے نامور ذاکرین علماء جناب علامہ سید منظور حسین شاہ سودرا، جناب علامہ جعفر رضا جعفر اف لاہور، جناب ذاکر سید منظور حسین شاہ کوٹدو، جناب ذاکر غلام عباس شاہ شادی وال، جناب ذاکر سید عامر عباس ربانی، جناب ذاکر سید اون صابر، جناب ذاکر غلام رضا جھنڈوی، جناب ذاکر یاسر رضا جھنڈوی، جناب ذاکر امیر حسین جعفری افسر گودا، جناب ذاکر فکران عباس بکھر، جناب ذاکر ملک اجاز حسین بھون، جناب ذاکر ملک نیاز حسین بھون ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ مجلس کے علاوہ شبی علم اور شبی ذوالجناح برآمد ہوں گے۔ علاقہ بھر کی ماتمی سنگتیں تشریف لائیں گی۔ جملہ مومنین سے اور خصوصاً ماتمی حضرات سے شرکت کی استدعا ہے۔ اب 18-19 جون مجلس عزا امام بارگاہ دربار حسینی بٹاڑی نزد کلر سیداں سالانہ مجلس عزا منعقد ہوگی، جسے ذاکر سید مشتاق حسین شاہ علامہ اسد رضا صاحب بخاری، جناب ذاکر سید محمد حسین شاہ بنگلہ یاسمین، جناب ذاکر سید مظہر حسین شیرازی، جناب علامہ سید ضمیر حسین نقوی، جناب ذاکر ذیشان عالم بٹی آفتالہ گنگ، جناب مولانا سید منتظر عباس نقوی ذکر محمد و اہل بیت محمد بیان فرمائیں گے۔ اور مجلس کے علاوہ شبی علم اور شبی ذوالجناح برآمد ہوں گی۔ ہمارے ملک کے معروف نواخان باوا پیر سید محمد سبطین شاہ بخاری آف بھکر ڈی جی خان ڈیرہ اسماعیل خان شرکت فرمائیں گے۔ تمام مومنین سے اور خصوصاً ماتمی حضرات سے جوق در جوق شرکت کی استدعا کی جاتی ہے۔ مومنین کرام، اب آپ کے سامنے جناب قبلہ علامہ علی عمران صاحب اپنے مخصوص انداز میں ذکر محمد و اہل بیت محمد کی سعادت کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ اپنی زبانوں کو معطر کیجئے بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدریہ۔ جہاں میں دکھ کا مداوع کوئی نہیں کرتا، جہاں میں دکھ کا مداوع کوئی نہیں کرتا، میرے خالق یہ کام تیرے علاوہ کوئی نہیں کرتا۔ رسول ہونے کا دعویٰ تو لوگ کرتے رہے، حسین بننے کا دعویٰ کوئی نہیں کرتا۔ گزارش کروں گا جناب قبلہ علامہ علی عمران صاحب سے وہ تشریف لائیں اور ذکر محمد و اہل بیت محمد کی سعادت سے مستفید فرمائیں۔ بآواز بلند درود پر محمد و اہل بیت محمد۔ التماس دعا برائے حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم ہماری اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ خالق دو جہاں بانیان کا صف عزا بچھایا اپنی بارگاہ کے اندر منظور و مقبول فرمائے۔ پروردگار عالم اس عزت والے دربار سے کسی کو خالی جھولی واپس نہ بھیجے۔ مالک دو جہاں ہمارے وارث کا جلد ظہور فرمائے۔ ہمیں اپنے آقا و مولا کی معرفت، محبت، زیارت نصیب فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، سرکار کے سلامتی و ظہور کے لیے جس قدر ممکن ہو سکے خلوص نیت سے صلوات بھیجنے محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی فمن لم یطعمہ فانہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدی۔ خوشنودی جناب سیدہ کونین کے لیے سارے حضرات مل جل کے صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ اجازت ہے سرکار، نوکری شروع کر دی جائے جناب۔ بالکل میں نے خطبہ بھی نہیں پڑھا ہے، ایک لمحہ ضائع کیے بغیر جس کا مجھے حکم دیا گیا ہے
वक्त मेरे पास बड़ा मुख्तसर है, उसी में से मैं चाहता हूँ 2 या 4 जुमले आपकी खिदमत में हदिया कर जाऊँ। मैं कोशिश करूँगा कि जितनी देर भी गुफ्तगू करूँ मेरी ज़बान से निकलने वाला हर लफ्ज़ नालैन हज़रत अब्बास से उड़ने वाली गर्द से तयम्मम करता हुआ काबा मवद्दत की तरफ सजदे करता रहेगा। अगर कोई इस नीयत में बैठा हुआ है कि मैं पहले उसे झंझोड़ूंगा, फिर कहूँगा पिछले बोलो, फिर कहूँगा अगले बोलो, तो वो बिल्कुल दिल दिमाग से ये ख़याल हटा ले, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त ही नहीं कि बार बार तवज्जो का कशकोल आपकी बारगाह के अंदर लेकर आऊँगा मैं। क्योंकि हज़रत अब्बास की मजलिस के लिए किसी को तवज्जो दिलाने की ज़रूरत ही नहीं होती है। हर घर की छत पे लगा हुआ अलम दुनिया को ये बतला रहा है कि हमारी तवज्जो का मरकज़ कल भी अब्बास था, आज भी अब्बास है। पहला जुमला हदिया करने जा रहा हूँ सरकार, जहाँ जहाँ बैठे हैं हर बंदा अपने मर्ज़ी अपने मिजाज के मुताबिक सुनेगा, और मैं अपने अंदाज से, भाई काजी, मैं बिल्कुल अपने अंदाज से पढ़ने जा रहा हूँ, जैसे दिल करे आप सुनिएगा। कौन है हज़रत अब्बास? नमाज मारिफत हुसैन के लिए जिसकी विला का वुज़ू वाजिब हो उसे हज़रत अब्बास कहते हैं। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, अली हमारे ईमान का मसला है, मगर अब्बास हमारी गैरत का मसला है। पता नहीं जिस तक मेरी बात पहुंचेगी वो हिले चुलेगा ज़रूर। बोलना अपनी मर्जी से है आपने मेरे दोस्तों, ये नहीं है ज़बरदस्ती किसी पर नहीं। बदर में अली से डर के भागने वाले, बगैर तमहीद के जुमला कह रहा हूं, बदर में अली से डर के भागने वाले, सिफ़ीन में जिसे अली समझ के भाग जाएं उसे हज़रत अब्बास कहते हैं। मैं अगला जुमला भी बगैर तमहीद के अर्ज करने लगा हूं। कौन है हज़रत अब्बास? अल्लाह ना हो मगर लगता हो उसे अली कहते हैं, अली ना हो मगर लगता हो। बोलो मेरे साथ यार, जिस तक बात पहुंच रही है। अल्लाह ना हो मगर लगता हो, जिसकी तलवार नस्लों में मोमिन देख के सर छोड़ दे उसे अली कहते हैं। दिन तक बात पहुंचेगी मेरे दोस्तों, जो जानते हो सो जानते हैं। हैदर करार जब मैदान में आया करते थे तो मैदान में आते ही कभी मेरे मौला की तलवार कई कई गज लंबी हो जाया करती थी, कभी हैदर करार अपनी ही तलवार को पकड़ के हवा में छोड़ देते थे और इतना कहते थे, इसे मार दे उसे छोड़ दे, इसे मार दे उसे छोड़ दे, इसे मार दे उसे छोड़ दे। एक दिन मालिक इब्ने हुरैस, जिसे आप मालिक अश्तर के नाम से जानते हैं, उसने कहा, या अमीर अल मोमिनीन, जब जब आपकी तलवार चलती है ये सर छोड़ के क्यों चलती है? मुस्कुरा के अली कहने लगे, सर छोड़ के नहीं चलती, नस्लें देख के चला करती है। मुश्किल कुछ है। जिसकी तलवार नस्लों में मोमिन देख के सर छोड़ दे उसे अली कहते हैं, और जिसकी तलवार नस्लों में बुग़्ज़े अली देख के सर काट दे उसे हज़रत अब्बास कहते हैं। कायनात में बड़े बड़े अलमदार गुजरे हैं। कायनात के अंदर जनाब जाफ़र तैयार भी अलमदार गुजरे हैं, जनाब हमज़ा भी अलमदार गुजरे हैं, हैदर करार भी अलमदार गुजरे हैं, मगर जैसे अलमदार हज़रत अब्बास हैं, आज दिन तक ऐसा कोई अलमदार न आया, न था, न है, न हो सकता है क़यामत तक के लिए। इससे बड़ा एजाज़ अलमदारी का और क्या हो सकता है कि हुसैन के लश्कर का अलमदार भी अब्बास है, कायम के लश्कर का अलमदार भी हज़रत अब्बास है। मयार मेरे दोस्तों, मयार रखना अपने ज़हनों के अंदर। जितना भी बड़े से बड़ा अलमदार गुजरा है, अलम हमजा ने भी उठाया, अलम जाफर तैयार ने भी उठाया। जो अलम हमजा ने उठाया, अलम ऊपर था, अलमदार का हाथ नीचे था।
जो अलम जाफर तैयार ने उठाया अलम ऊपर था, अलमदार का हाथ नीचे था। जो अलम हैदर कर्रार ने उठाया अलम ऊपर था, अलमदार का हाथ नीचे था। मगर जब से ये हजरत अब्बास के पंजाए विलायत के अंदर आया है तब से मौजज़ा ही बदल गया है। तब से होता ये है अलम नीचे रहता है, अब्बास का हाथ ऊपर रहा करता है। या मैं एक आराम से फिक्रा पढ़ने चाहता हूँ, वैसे भी मैं आराम आराम से पढ़ रहा हूँ ताकि हर बंदे तक बात पहुँच रही है बड़ी आसानी से। ज़्यादा रश होता तो शायद मुझे ज़ोर भी ज़्यादा लगाना पड़ता। आराम से जितना मजमा है उसके मुताबिक मैं जुमला कहने लगा हूँ। जो परचम जनाबे हमज़ा ने उठाया ना उस पर लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह। जो जाफ़र तैयार ने उठाया उस पर लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह। जो परचम हैदर कर्रार ने उठाया उस पर लिखा था मोहम्मद रसूलुल्लाह। मगर जो परचम हज़रत अब्बास ने उठाया उस पर लिखा हुआ था अलीयुन वलीयुल्लाह। हमें पता चल गया अब्बास सिर्फ सालारे लश्कर को नहीं कहते, कारवाने विलायत के अलमदार को हजरत अब्बास कहा करते हैं। और हजरत अब्बास कोई आम हस्ती नहीं है, कोई आम बंदे का नाम नहीं है हजरत अब्बास। मासूमीन की नज़र के अंदर हजरत अब्बास की हैसियत क्या है ये पढ़ा हर दौर के अंदर। इतने पढ़े लिखे हजरात तशरीफ फरमाए मेरे सामने, एक हवाला भी काफ़ी होगा। हर मासूम के साथ हजरत अब्बास की नस्ल में से कोई ना कोई बेटा भतीजा भांजा साथ रहा है। पता नहीं बात पहुंची है या नहीं पहुंची मेरे दोस्तों तक यार। फिक्रा तो मैंने बड़ा अर्ज किया मेरे दोस्तों। अब्बास वो हस्ती हैं कि जो हुसैन के होते हुए भी लश्कर को दिलासा देता है। मैंने दुनिया आलम के अंदर देखा भी है, पढ़ा भी है, सुना भी है। बस इसी पे मैं इख्तिताम भी करने लगा हूँ अपनी गुफ्तगू का। आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा मेरे दोस्तों कि कायनात में हज़रत अब्बास ने एक खुतबा काबे की छत पे दिया है, एक मंज़िल अशराफ पे दिया है, एक खुतबा 8 मुहर्रम को दिया है, एक खुतबा हज़रत अब्बास ने शब आशूर को दिया है। मेरा दिल कर रहा है जो शब आशूर हज़रत अब्बास ने दिलासा दिलाया था उस दिलासे के 2 फिक्रे अर्ज कर दूं। अगर आपका दिल चाह रहा हो तो इजाज़त है मैं अर्ज कर दूं मेरे दोस्तों। हुसैन बैठे हैं खैमे के अंदर, साथ में हुसैन के सिपाही बैठे हुए हैं और उन्हीं सिपाहियों के बीच के अंदर बैठे हुए हैं हज़रत अब्बास। अब मुझे नहीं पता आप किस मयार पे सुनते हैं, वैसे पता हमें इसी चीज़ से लग जाता है जब आप हिलते हैं, दाद लेते हैं, मुस्कुराते हैं, वहाँ से पता चल जाता है कि इस बात की हैसियत क्या है आपकी नज़र के अंदर। जितने सामीन मेरे सामने तशरीफ़ फरमाए ना भाई अफजाल, मैं इसी पर ही देख लूँगा। अब्बास ने बैठे बैठे हुसैन के जो चंद सिपाही थे उनकी सोच को पढ़ा। मैंने पहले कहा था मेरे दोस्तों, अब्बास ने शब्बीर के खैमे के अंदर बैठे हुए मुट्ठी भर सिपाहियों की सोच को पढ़ा और पढ़ने के बाद हज़रत अब्बास ने हुसैन इब्ने अली से इज़्न लिया। इज़्न लेने के बाद जो खुतबे के 2-4 फिक्रे कहे हैं, खुतबा तो पढ़ ही नहीं सकता मैं, 2-4 फिक्रे अर्ज करता हूँ मैं। अब्बास देख के पूरे मजमे में वो जो बैठे हुए थे ना बंदे, उनको देख के एक एक को मुखातिब करके अब्बास कह रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुतबे का रावी भी कोई आम बंदा नहीं है। रावी कौन है? अली की बेटी है, जिसके लिए खुद मेरे चौथे इमाम ने कहा अंते बेहमदिल्लाह आलिमा तो गैर मुअल्लिमा। हम इस बात पर खुदा की हम्द करते हैं कि अल्लाह ने हमें वो फुफ्फी अता की है जो सिर्फ आलिमा नहीं गैर मुअल्लिमा है। हाय 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 हाय। वो बीबी कहती हैं कि जब मैंने हजरत अब्बास को देखा तो अब्बास क्या कह रहे थे? अब्बास कह रहे थे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मुब्दिल अनवार मुलजिल लैल वन नहार अम्मा बाद अय्युहल अखयार व या अंसार अल्लाह लिल्लाहिल अबरार वला तुफसिलू मिन हजूमिल कुफार वला तखशलू मिन कसरतिल अशरार लिअन्नहुम किलाबुन नार व फराशल असारा फकैफा युकामिमु मिन बुज़ातिल अतियार लक़द इख्तरकुमुल्लाहु फी ज़र्रिल अव्वल नुसरत वलियहि व फरहत नबियहि व अंतुम लुब्बुल बरियत व खुलासतुल खलीकत अलस्तुम तारिफूनी अना हैबतुल जब्बार अना तलबतुल
मुहब्बतुल कर्रार अना साहिब साहिब जुल्फ़िकार वल्लाहि लौ कुन्तु वहदी लिउहामी अन सय्यदन लिकरम व उज़क्किरुकुम गदन ज़लाज़िल यौमिल अज़ीम गदन वल्लाहि उहीरु जिब्राइल गदन वल्लाहि उदइशु इज़राइल लिअहलि शाम आफिर हुफरन बिहाफिर फरसी लौ वज़नल इमाम अस्बई सैफी व समाउ तुरसी फलम्मा बलगा इलाहुना अखबार वाहिद मिन असहाबे अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम आलि शाम यतजस्ससु हुलल खयाम वल खंदक व गसब कल्लसल मुक़लिब व राकिबा अला मतन फरसई बगैर सरजई व राकिबा अला मताने ही। कोई तवज्जो फरमा भी रहे हैं कि नहीं फरमा रहे मेरे दोस्तों? यार मेरे ख्याल से भाई इतना काफी। अरबी सुनाना मकसद नहीं है मेरे दोस्तों, मकसद है बात पहुंचाना। मैं इसी फिक्रे पे अंदाजा कर लूंगा, मुझे मिंबर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं समझता कि अगर कोई बंदा तवज्जो ही ना कर रहा हो, हजरत अब्बास की बात हो, छत पे लंबी हजरत अब्बास का हो और बंदा बोल ही ना सके, तो मेरे ख्याल से वहां जिक्र रोक देना बेहतर होता है। मैं इसी फिक्रे पे पहले फिक्रे से अंदाजा कर लूंगा कि मुझे आगे 2-4 लाइनें पढ़नी है या यहीं पे इख्तिताम करें। हजरत अब्बास फरमा रहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह मुबदिल अनवार मौलिजिल लैल फिन नहार। अब्बास कह रहे हैं हर हर हम्द है उस अल्लाह के लिए जिसने अनवार को ईजाद किया। जो बंदे जाग रहे हैं मेरे दोस्तों, उनके लिए फिक्र करने लगा। फिर मेरे सरकार ने क्या फरमाया? बावफा फरमाते हैं मौलिजिल लैल फिन नहार, जिसने रात को दिन में दाखिल कर दिया। मेरे शिया सुनी दोस्तों, कायनात में कोई ऐसा बंदा दिखाओ जिसने ये लिखा हो, तहरीर किया हो राज साहब, कि हजरत अब्बास जब खुतबा दे रहे थे तो फिक्रे में क्या कहा? मौलिजिल लैल फिन नहार, रात को दिन में दाखिल किया। रात ही रही, दिन तो हुआ ही नहीं। अब्बास क्या कह रहे थे? यार मैं तो उस बंदे को या बेवकूफ कह सकता हूं या सादा ही कह सकता हूं ना। हुसैन ने सिर्फ इतना कहा, अब्बास जाओ चिराग बुझाओ। अब्बास ने चिराग बुझाया, फिर कहने लगे मौलिजिल लैल फिन नहार, जिसने रात को दिन में दाखिल कर लिया। वो बंदा अंधा नहीं है तो और क्या है? चिराग बुझा के हुसैन कह रहे थे जहां अकबर मौजूद हो वहां अंधेरे नहीं हुआ करते हैं। हाय हाय, मयार है यार आपका अपना। अल्लाह अकबर या रसूल या अली मुस्कुराए। पाक बीबी आपकी इज्जतें सलामत रखेंगे। मौला बानियान का ये सफ़े अज़ाब बिछाया अपनी बारगाह के अंदर, बड़ी रूहानियत है खुदा कसम। इतने मजमे के अंदर, ऐसी तरतीब के अंदर, और फिर इस अंदाज में बोलना, इससे बड़ी बात नहीं होती है। हम रोज़ के पढ़ने वाले, हमें अंदाज़ा हो जाता है। अगला फिक्रा पढ़ दूं, मौलिजिल लैल फिन नहार अम्मा बाद अय्युहल अखयार। वाह या अली, खुदा की कसम आरिफीन का मजमा होता तो पढ़ने के काबिल थे ये फिक्र। अब्बास बोल रहे हैं, अली का बेटा बोल रहा है, वजहुल्लाह का मालिक बोल रहा है, अली का चेहरा लेके अली दिखने वाला बोल रहा है। वो कह क्या रहे हैं? कह रहे हैं मौलिजिल लैल फिन नहार अम्मा बाद अय्युहल अखयार, ए अल्लाह के चुने हुए लोगों, मुझे अली की इज्जत की कसम अब्बास का फिक्रा कुरान से हटके था ही नहीं। जिसे अब्बास कह रहे हैं ना, ये जो खेमे में बैठे हैं ये अल्लाह के चुने हुए हैं। मैंने आयत पढ़ी तो आयत कह रही थी इन्नल्लाह अस्तफा आदम व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान। अल्लाह जब भी चुनता है या नबियों को चुनता है या रसूलों को चुना करता है। हाय 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 हाय, या आलिल्लाहिल अबरार। यार ये तो है ही नहीं, वैसे भी हर बंदे के राय साहब ना, ये वैसे भी ना अफजाल भाई ये फिक्रा तो वैसे ही हर बंदे के लिए है ही नहीं ना। हुसैन का सिपाही सालारे लश्कर कह रहा है, ए अल्लाह की आल के मददगारो। अब्बास ने तो बता दिया अल्लाह औलाद नहीं रखता मगर आल तो वो रखता है। आलिल्लाहिल अबरार वला तुफसिलू मिन हजूमिल कुफार। ये हजूम की कसरत से डरना नहीं, वला तख्शलू मिन कसरतिल अशरार। ये जो शरीर लोगों का हजूम कसरत इकट्ठी हो गई है, इनसे तुम घबराना न हम ले अन्नहुम किलाबुन नार। तुम तो दश्ते विलायत के अंदर बिखरे हुए शेर हो,
सामने जितने खड़े हैं सारे के सारे जहन्नम के कुत्ते ही तो हैं। है या अली मुश्किल, बस जी अलिल्लाहिल अबरार। फिर आगे क्या कह रहे हैं, लो वाज़िन अल इमाम, मैं छोड़ दिया, खुतबा ही छोड़ दिया, अगर मेरा इमाम इजाजत दे दे। हाँ, मीर अनीस का एक शेर मुझे याद आ गया। मीर अनीस कहते हैं हजरत अब्बास जब सामने आए तो आके कहने, दीवान का, उनके दीवान में से का ना एक शेर है ये, कहते हैं कि हमला करूं चढ़ा के अगर आस्तीन को, मैं आसमां समेत उलट दूं जमीन को। हाय मेरे मौला, पता नहीं कैसे सुनते हैं मेरे दोस्त। हाय हाय हाय, हमला करूं चढ़ा के अगर आस्तीन को, मैं आसमां समेत उलट दूं जमीन को। लो वाज़िन अल इमाम, अगर मेरा इमाम मुझे इजाजत दे दे, असबही सैफी व समाओ तुरसी, मैं तो आसमान को ढाल बना लूंगा, व समाओ तुरसी, उंगलियों को तलवार बना दूंगा। ये काम करने पे अब्बास कुदरत रखता है, मगर वो मुंतज़िर है शब्बीर के चेहरे का। हुसैन कुछ बोले तो, और हुसैन की चुप की वजह से अब्बास चुप है, बोलने की ज़रूरत नहीं। आगा हसन अब्तही हमारे मज़हब के एक बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं, वो फरमाते हैं कि जब किसी मोमिन या मोमना की कोई दुआ, मन्नत, हाजत पूरी ना हो रही हो, उसे चाहिए कि अपने घर के अंदर हज़रत अब्बास की मजलिस कराए, और जब आंसू चल के उसके रुखसारों तक आ जाएं, उस वक्त अल्लाह को हज़रत अब्बास का वास्ता देकर दुआ मांगे। अल्लाह अब्बास के सदक़े में मांगी हुई दुआ को कभी रद्द नहीं करता है। वो फरमाते हैं मैंने आलम ख्वाब के अंदर अपने इमाम की ज़ियारत की तो मौला से पूछा, अब्बास की मजलिस में हर दुआ कबूल क्यों होती है? तड़प के आपके और मेरे इमाम ने जवाब दिया, अब्बास के अपने सीने में कुल 2 हसरतें थीं। पहली, लड़ने की इजाज़त मिल जाए, दूसरा, सकीना तक पानी पहुँच जाए। ना लड़ने की इजाज़त मिली, ना सकीना तक पानी पहुँचा। अब्बास अपनी हसरतें सीने में लेकर दरिया किनारे बाजू कटा के सो गया। अल्लाह की आवाज आई, गाजी तेरी कोई हसरत पूरी नहीं हुई, मगर कयामत तक जो तेरा नाम लेकर मुझसे मांगेगा मैं अल्लाह उसे कभी खाली झोली वापस नहीं भेजूंगा। एक आलिम दीन का फिक्रा पढ़ता हूं और इसी पे गुफ्तगू भी तमाम करने लगा। तुम अपनी हाजात फैला के रखना, इससे ज्यादा रूहानियत हो ही नहीं सकती है। अली की इज्जत की कसम, जितने बुजुर्ग जवान बैठे हैं ऐसे लगता है जैसे आंखें इंतजार में हैं। अलामा किज़वीनी का आपने नाम सुना होगा, उन्होंने अपनी किताब के अंदर जो मसाइब की उन्होंने किताब लिखी ना, उसका जो मुकदमा लिखा ना भाई अफजाल, मुकदमा, उस मुकदमे के अंदर उन्होंने एक फिक्रा लिखा। कहते हैं एक दिन एक आलिम दीन ने मसाइब पढ़ा और वो मसाइब सुनने के बाद मैं आके कहने लगा, भला इतने सख्त मसाइब भी होते हैं कि जिसने ये मसाइब हजरत अब्बास के पढ़ ली। फिक्रा सुनेंगे, मौला के ज़ाकिरीन तशरीफ फरमाएं, क्योंकि आज दिन तक ये पढ़ा नहीं गया इसलिए मैं ये फिक्रा पढ़ रहा हूँ। हम भी हर बंदे को सुनते रहते हैं ना, आप सुनेंगे। कहते हैं कि मैंने सुना एक पत्थर उठा जब अब्बास के बाजू कट चुके थे, एक पत्थर उठा जो अब्बास के दाएं रुखसार पे लगा। अल्लाह हाय करने वालों को दुनिया के किसी काम में हाय न कराए। कहते हैं फिर किसी ने एक और पत्थर उठाया, अब्बास के बाएं रुखसार पर लगा। फिर कहता है किसी शामी ने पत्थर उठाया, अब्बास की पेशानी में लगा। कहता है ये फिक्रे सुनने के बाद मैं तड़पता रहा कि भला ऐसा कैसे हो सकता है, किसी की इतनी जुर्रत कहाँ कि ये अब्बास को पत्थर मार सके। कहता है मैं तो ये फिक्रे सुनने के बाद घर आया, तबसरा करते हुए सो गया। ख्वाब के अंदर खुद हजरत अब्बास आ गए, आके कहने लगे तूने किस नीयत से कह दिया था कि मुझे पत्थर नहीं लगे, क्या तू करबला के अंदर मौजूद था? कहता है मौला मैं इस बात की तो माफी चाहता हूं, मगर एक और सवाल मुझे खाए जा रहा है। मौला अब भी आपका कद मुझे नजर आ रहा है, मौला इतना दराज कद है आपका। मौला करबला के मैदान के अंदर किस मां ने ऐसा बेटा पैदा कर दिया था जिसका हाथ आपके सर तक चला गया था और आपको गुर्ज भी लग गया था? एक मर्तबा रो के कहने लगे और कुछ नहीं था, कद मेरा
ایسے ہی اونچا تھا جیسے میں گھوڑے پہ بیٹھتا تھا، پاؤں بھی زمین پہ خط کھینچا کرتے تھے۔ اس نے کہا مولا پھر گرز آپ تک کیسے پہنچا؟ ایک مرتبہ تڑپ کے کہنے لگا میں نے سکینہ کی مشق کو بچانے کے لیے اپنے سینے کے ساتھ مشق کو لگایا ہوا تھا، جیسے ہی دانتوں میں مشق رکھی سینے سے مشق کو لگایا ہوا تھا، اللہ لعنت کرے کمینے پر اس نے گرز کا ایسا وار کیا، میں اب گھوڑے کی زین پر رک نہیں سکا، جیسے ہی میں نیچے آیا پاؤں رکاب میں پھنس گیا تھا۔ ایک کالے برقعے والی بی بی کے بہن آتے تھے، حسین جلدی آنا میرا عباس زندگی میں پہمال ہوا جاتا ہے۔ جزاکم ربکم۔ یہ تھے جناب علامہ علی عمران صاحب جو ذکر محمد و اہل بیت محمد کی سعادت سے مستفید فرما رہے تھے۔